দীর্ঘ লকডাউনের ফলে গোটা দেশ সহ রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো একেবারে ভেঙে পড়েছে। আর এর জেরে সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত দিন আনা দিন খাওয়া মানুষজন। এর পাশাপাশি ভেঙে পড়েছে শিল্প থেকে কর্মব্যবস্থা। ইতিমধ্যেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সরকার। পাশাপাশি এই অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষের দিকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বেঙ্গল হেল্পিং হ্যান্ড ট্রাস্ট গ্রুপ। বিগত লকডাউনের শুরু থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে করোনা এবং আমফান ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের হাতে খাদ্য সামগ্রী থেকে শুরু করে জামা কাপড় ইত্যাদি তুলে দিচ্ছে বেঙ্গল হেল্পিং হ্যান্ড ট্রাস্ট গ্রুপ। জুতো থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সবটাই তুলে দিয়েছেন বেঙ্গল হেল্পিং হ্যান্ড ট্রাস্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান শেখ জুলফিকার আলী। তিনি এবার রাস্তায় নেমে কাজ করেছেন। পাশাপাশি এই দীর্ঘ লকডাউনের ফলে বেঙ্গল হেল্পিং হ্যান্ড ট্রাস্টের কিছুটা পরিকাঠামো ভেঙেও পড়েছিল। এই গ্রুপের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন অনেক গরিব সাধারণ পরিবারের মানুষ। গোটা দেশ জুড়ে এই বেঙ্গল গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রি সিকিউরিটি গার্ড থেকে শুরু করে ফ্যাসিলিটি ম্যানেজমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে বহু মানুষকে চাকরি দিয়ে চলেছেন। তাই এই লকডাউন খোলার পরেও যাতে এই সাধারণ মানুষের কথা ভেবে সরকার কিছুটা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, তাহলে এই ইন্ডাস্ট্রি থেকে শুরু করে আরও মানুষের পরিবারের হাতে চাকরি তুলে দিতে সক্ষম হবে বেঙ্গল হেল্পিং হ্যান্ড ট্রাস্ট গ্রুপ। ক্লিক করুন নিচে দেওয়া বেল আইকনে, সাবস্ক্রাইব করুন 24 আওয়ার্স টিভিকে। সব সময় আপডেট থাকুন খবরে। পিং ভারত ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা শাহিদ আলী, জিশান আহমেদ, ওয়াসিম মানিয়ার, মোহাম্মদ হোসেন, নদীন হোসেন, মোহাম্মদ শাহিদের উদ্যোগে চীন যুদ্ধে শহীদ ভারতীয় সৈনিকদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। উত্তর কলকাতা জাকারিয়া স্ট্রিটে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে ছিলেন কলকাতা পৌরসভা 44 নম্বর ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি রেহানা খাতুন, 43 নম্বর ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি সাগুপ্তা পারভিন। বীর শহীদদের শ্রদ্ধার এই যে অনুষ্ঠান, তাতে অংশগ্রহণ করলেন প্রেসিডেন্ট সৈয়দ জিন্নাহ হাফিজ, ভাইস প্রেসিডেন্ট মুদ্দাসার নজর, সেক্রেটারি নাজিম ওয়ারসি, জয়েন্ট সেক্রেটারি আদিত্য আচার্য, এর পাশাপাশি ট্রেজারার মোহাম্মদ নিয়াজউদ্দিন। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট সৈয়দ জিন্নাহ হাফিজ, ভাইস প্রেসিডেন্ট মুদ্দাসার নজির, সেক্রেটারি নাজিম ওয়ারসি, जॉइंट सेक्रेटरी आदित्य आचार्य, ट्रेजरर मोहम्मद नियाजुद्दीन। आप सभी जानते हैं कि आज देश का रक्षा करते हुए, हिफाजत करते हुए जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, वो हमारे घर के अपने औलाद से कहीं बढ़ कर के हैं, क्योंकि वो पूरे देश की रक्षा करते हैं। और उन शहीदों को आज हम लोगों ने दिल की गहराई से खिराज अकीदत पेश किया है। और आप लोगों के सामने देखा गया कि तमाम नौजवानों ने भी एक कसम लिया है, ये अहद लिया है कि हम लोग कोई भी चाइना के बनी हुई कोई भी चीज़ का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में आज के बाद से नहीं करेंगे जब तक सूरत हाल हमारे मुल्क की बेहतर ना होगी। तो चाइना प्रोडक्ट बॉयकॉट के लिए मैसेज क्या देना चाहते हैं दर्शकों? मैसेज यही देना चाहते हैं कि सबसे बेहतर तो हम लोगों की गार्जियन, मुल्क में गार्जियन सबसे बड़ी गार्जियन होती है सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पूरे देश की गार्जियन है, लेकिन जब गार्जियन घर का बिगड़ जाता है तो पूरा परिवार दरहम बरहम हो जाता है। आज वही बिल्कुल घर की तरह सूरत हाल है। जिस तरह हमारी गवर्नमेंट इस तरह से हिंदुस्तान को जिस जगह पर ला करके खड़ा कर दिया है, हम ये बोलेंगे 1 साल नहीं 2 साल नहीं बल्कि 10-20 साल के लिए हिंदुस्तान बिल्कुल पीछे जा चुका है। और हिंदुस्तानियों को संभलने में एक मुद्दत लगेगी, तब जाकर अगर कोई फिर से फितना फसाद और कांड नहीं किया अगर इस हुकूमत ने, ये जो अभी आप लोगों ने देखा जो कोरोना का इतना बड़ा एक आबो हवा जो चला था, जो बीमारी चली थी, इसके आड़ में कितनी बड़ी सियासत हुई है। पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया जानती है कि सेंटर ने जो सियासत किया है ख़जाना लूटने के लिए, ख़जाना बनाने के लिए, जो निचले तबके के रोज़गार को ख़त्म करने के लिए, किसी एक मज़हब को टारगेट करने के लिए इसने खूब जी भर के उसका मकसद अपना पूरा किया है। तो हम ये कहते हैं कि अच्छी सरकार जो है सब सर जोड़ करके बैठें, आवाम अच्छी सेकुलर हुकूमतों के साथ है, सेकुलर पार्टियों के साथ हैं। और हम सब अगर चाइना के जिस तरह से सरकार हम लोगों को गाइडलाइन देगी, हम सब पूरे आवाम सेकुलर हुकूमतों के साथ हैं, उसी तरह से हम लोग सोचेंगे। मैं आज जो 20 जवानों ने शहादत दी है हमारे बॉर्डर पे चाइना के ख़िलाफ़, हम लोगों को तहे दिल मतलब दिल की गहराइयों से उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और हमारे जवान जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश की, हमारे मुल्क की रक्षा करते हैं, हिफाजत करते हैं, उनके लिए हम लोग तो सरहद पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से खड़े होकर उनकी हिम्मत अफजाई के लिए कि और हमारे नौजवान चाइना का मुकाबला ज़्यादा से ज़्यादा ताकत के साथ करें। बॉयकॉट चाइना, चाइना बॉयकॉट करने के लिए इंसान को कैसे समझिएगा? देखिए, चाइनीज़ प्रोडक्ट का बाइकआउट का एक मामला चल रहा है।
और लगभग हिंदुस्तान में चाइना का तो सुई से लेके, कपड़ा से लेके, धागा से लेके, मशीनरी से लेके तमाम चीज़ चाइना जो है हिंदुस्तान में छाया हुआ है। तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या पॉलिसी लेती है, क्या करती है, नहीं करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अब तक नाकाम है, फेल है। हम अपना घर का टीवी तोड़ सकते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो उनका, जो सरकार का, हमारे गवर्नमेंट का चाइना के साथ है, वो ख़त्म नहीं होगा। वो नहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन हम अपना घर का टीवी तोड़ेंगे। तो ये चीज़ मैं अपने मैसेज देना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अपने देश का पॉलिसी को सही रखिए और हमारा सर चाइना के सामने झुकाइए मत। आप लोगों की गलतियों की वजह से हमारे देश का सर झुकता है। ये मैसेज हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। फिर से एक तो श्रद्धांजलि है कि यहाँ पे जो नौजवान साथी श्रद्धांजलि कर रहे हैं, इसका जाहिर है कि हम लोग उनको जो शहीद हुए हैं उनके बहुत हम लोग अफसोस कर रहे हैं। उनको घर वालों के साथ में अफसोस कर रहे हैं। उनके घर से हम लोग मिलम रखते हैं, अच्छे रखते हैं कि यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनके घर वालों के साथ सब्र दे दे। और सबसे पहले यही बाद में यही कहना चाहूँगी कि वहाँ के कोई सामान हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने बच्चों के सामान कुछ पहले बहुत शौक से खरीदते थे, अब हम लोग कोई सामान वहाँ के नहीं खरीदेंगे। इसलिए वहाँ के यहाँ के बंगाल के 2 नौजवान गुजर गए हम लोग वहाँ पे, तो हम लोग को पीछे नहीं हटेंगे, हम बदला ज़रूर लेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी बात है कि हमारे कोई सामान हम लोग नहीं होने दें। जब तक माहौल अच्छा नहीं बनेगा तब तक हम दर्शक को मैसेज क्या देना चाहते हैं? ये दर्शक मैसेज देने कि वहाँ के कोई सामान हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग बॉर्डर पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो सामान नहीं लेके उनको हम ताकत हमारे अंदर है कि हम लोग को हरा सकते हैं। मेरा नाम हुआ ज़िशान अहमद और अपना जो एसोसिएशन है बीइंग भारत वेलफेयर एसोसिएशन, ये हम लोग आए हैं ये काम करने के लिए, मेडिकल, एजुकेशंस, एनवायरनमेंट पे काम करने के लिए हम लोग आए हैं। और आज जो हम लोग का प्रोग्राम रखा गया है वो श्रद्धांजलि देने के लिए जो शहीद हुए जवान, जिनको चाइना ने धोखे से मारा, जिन्होंने अपना जान दिया हमारे रक्षा के लिए, उनके लिए श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। उनके परिवार को सब्र दे और वो हम लोग सब गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग भारत देश में रहते हैं। जैसे नौजवान हैं जो हम लोग के लिए अपना जान देना चाहते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ ये कहना चाहते हैं कि चाइना जो हमारे साथ सियासत किया, आज कोरोना के वजह से लोग परेशान थे, जीडीपी हो या बिज़नेस हो, सारे लोग परेशान थे। इसमें चाइना ने ये सियासत करके बहुत ख़राब किया। और हम यही चाहेंगे हमारे भारत के नौजवानों से, लोगों से, कि चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको हम लोग चाहें तो बाइकआउट कर सकते हैं। और लोग कहते हैं कि चाइना से मेडिकल, मेडिसिन, ये सब लोग, हमारा भारत किसी से कम नहीं है कि कुछ ना कर सके। हम लोग सब कर सकते हैं। आप लोग वेलफेयर से एसोसिएशन की तरफ से इंसान का साथ इंसान का पास कैसा काम कर रहे थे? ये हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे गांव में छोटे छोटे कबीले होते हैं जहां पर एजुकेशन की कमी है, बच्चे लोग पढ़ना चाहते हैं पर पैसों की कमी की वजह से, हालात की वजह से वो लोग पढ़ नहीं सकते। हम लोग वहाँ पहुँचना चाहते हैं, वो वहाँ के बच्चे को एजुकेशन का जितना से ज़्यादा सपोर्ट हो सकता है हम लोग देना चाहते हैं। हेल्थ इश्यूज़ होता है, आज बहुत सारे लोग खाने के वजह से, दवा के कमी की वजह से, पैसों की कमी की वजह से दवा नहीं खा पाते, बीमार रहते हैं। उन लोगों को जहाँ से हो सकता है हम लोग कोशिश करेंगे कि उन लोगों को मेडिसिन पहुँचे, इलाज सही प्रॉपर हो। सरकार तक भी हम लोग ये पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार अपना काम बहुत अच्छे तरीके से तो कर रही है। जहां पर कुछ जगह होता है जहां लोग नहीं पहुंच पाते हैं, हम लोग कोशिश है वहां पहुंचें और वहां पहुंच के जितना से ज़्यादा हम लोग अपना दे पाएँ, हम लोग देंगे ज़रूर। मेरा नाम मुदस्सर नज़र है, निक नेम गुड्डू है। आज का जो आप लोग प्रोग्राम किए इनके बारे में, इसके बारे में जो जवान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आज यहाँ पर ये प्रोग्राम किए हैं। और इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम लोग को एक ही बात करना है कि चाइना का हर एक प्रोडक्ट को बाइकाट करना है। क्योंकि सिर्फ चाइना आज प्रोडक्ट दे रहा है तो और भी कंट्री हम लोग वहाँ से भी काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ चाइना ही से हम लोग काम कर सकते हैं। और मेडिसिन वगैरह है, चाइना से भी अच्छी कंट्री है, वहाँ से भी हम लोग मेडिसिन ले सकते हैं। और भाई अभी अच्छा बात बोले, भारत किसी से कम नहीं है। भारत खुद चाहे तो खुद मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। तो चाइना का जो बॉयकॉट कीजिएगा इसके लिए मैसेज क्या देना? लोगों से यही अपील करते हैं कि चाइना का जो एक आदत बन गया है सामान यूज़ करने का, वो आदत को ख़त्म करे। अगर वो कोशिश करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये हम लोग का एक सोच है, आगे लोगों को साथ देना हम लोग का, ये सोच कामयाब हो जाएगा अगर लोग साथ देंगे तो। ক্লিক করুন নিচে দেওয়া বেল আইকনে, সাবস্ক্রাইব করুন 24 আওয়ার্স টিভিকে। সব সময় আপডেট থাকুন খবরে। বেঙ্গল গ্রুপ
প্রাইভেট সিকিউরিটি অ্যান্ড ফ্যাসিলিটি ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে প্রায় 1 দশকেরও বেশি সময় ধরে বেঙ্গল এবং প্যান ইন্ডিয়া বেসিসে কাজ করছে। যারা সিকিউরিটি গার্ড, বাউন্সার, কেয়ারটেকার, অল ইন্ডিয়া লাইসেন্স গানম্যান, হাউসকিপিং, ফ্যাসিলিটি ম্যানেজার, গার্ডেনার, লিফটম্যান, ড্রাইভার, মহিলা সুরক্ষা এবং বাউন্সার, ফিল্ড অফিসার, মার্কেটিং ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী তারা যোগাযোগ করুন বেঙ্গল গ্রুপের সঙ্গে। ঠিকানা বেঙ্গল গ্রুপ, 60 নম্বর লেনিন সরণি, কলকাতা 700013, লি স্মৃতি বিদ্যালয়ের একেবারে বিপরীতে, ওয়েলিংটনে। মোবাইল নম্বর 7980544543, ল্যান্ডলাইন নম্বর 03322649796 এবং 22268186।